बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12 फिज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कोई भी डाई इलेक्ट्रिक अगर हम कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस कर दें तो उससे उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाती है। ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है क्या। डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है और आपको पता है जितने भी मटेरियल्स हैं सब एटम से मिलके बने हैं। अब एटम ऑन द होल न्यूट्रल है, यानी उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो चार्जेस कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव के साथ कोइंसाइड करता है। जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसुलेटर को रखते हैं तो उस वक्त ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर हैं वो कोइंसाइड नहीं करते, बल्कि ये अपनी जगह से स्लाइटली डिस्प्लेस कर जाते हैं। चूँकि अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, आपने उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक को सब्जेक्ट किया। अब डाई इलेक्ट्रिक में इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, यानी एटम्स जो उसके हैं, तो होगा इस तरह से कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरह से जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी स्लाइटली अपनी जगह से चार्जेस डिस्प्लेस हो जाएंगे। इस तरह चार्जेस का अपनी प्रॉपर जगह से कुछ डिस्प्लेस कर जाने का प्रोसेस पोलराइजेशन कहलाता है। और इस तरह से कोई भी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस से जब सेपरेट होते हैं तो वो एक डाइपोल फॉर्म करते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज़ नोन एज अ डाइपोल। और इस तरह इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, जो फिगर 12.26 में आपको दिखा दिया है। The increase in the capacity of a capacitor due to the presence of dielectric is due to electric polarization of dielectric. The dielectric consists of atoms and molecules which are electrically neutral on the average. That is, they contain equal amount of negative and positive charges. The distribution of these charges in the atoms and molecules is such that the center of positive charge coincides with the center of negative charge. When the molecules of dielectric are subjected to an electric field between the plates of a capacitor, the negative charges, means electrons, are attracted towards the positively charged plate of the capacitor and the positive charges, nuclei, towards the negatively charged plate. The electrons in the dielectric, which is insulator, are not free to move, but it is possible that the electrons and nuclei can undergo slight displacement when subjected to an electric field. As a result of this displacement, the center of positive and negative charges no longer coincide with each other. At one end of the molecule shows a negative charge and the other end an equal amount of positive charge, but the molecule as a whole is still neutral. Two equal and opposite charges separated by a small distance are said to constitute a dipole. ये डाइपोल की डेफिनेशन है जो अलग से भी आपको याद होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में अलग में भी ये आ सकती है आपको, या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है। Two equal and opposite charges separated by a small distance are said to constitute a dipole. Thus, the molecules of the dielectric under the action of electric field become dipoles and the dielectric is said to be polarized. The effect of polarization of dielectric is shown in figure 12.26. The positively charged plate attract the negative end of the molecular dipoles and the negatively charged plate attracts the positive end. Thus, the surface of the dielectric, which is in contact with the positively charged plate, places a layer of negative charges on the plate. Similarly, the surface of the dielectric in contact with the negative charged plate places a layer of positive
charges. It effectively decreases the surface density of charge sigma on the plates, as the electric intensity E between the plates is sigma over epsilon naught. गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये फार्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. सो E decreases due to polarization of the dielectric. This results into a decrease of the potential difference between the plates due to the presence of dielectric, as demonstrated by the experiment described in the previous section. पहले जो आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाया है कैपेसिटेंस के की डायग्राम में. नेक्स्ट है टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करती है. ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर करती है. आपको पता है ना, चार्ज स्टोर होता है और इस तरह से हमारे पास एनर्जी स्टोर हो जाती है. तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाली डिवाइस है. अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज. Alternatively, it is possible to think of a capacitor as a device for storing electrical energy. After all, the charge on the plate possesses electrical potential energy, which arises because work is to be done to deposit charge on the plates. This is due to the fact that with each small increment of charge being deposited during the charging process, the potential difference between the plates increases, and a large amount of work is needed to bring up next increment of charge. Initially, when the capacitor is uncharged, that is no charge, in the start, the potential difference between the plates is 0, and finally it becomes V when Q charge is deposited on each plate. यानी स्टार्ट में जब आपने स्टार्ट किया तो कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, पोटेंशियल डिफरेंस तब 0 था. कुछ टाइम के बाद जब फाइनली आपने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया. अब एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे. द एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 + V डिवाइडेड बाई 2. इट मीन्स एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, आप इसको डेल्टा V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हाफ V के इक्वल होगा. देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी जो आप प्रीवियस पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले में पढ़ चुके हो, डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V, और यहाँ उसको हमने PE पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा है. तो ये फिर आपके पास आ जाएगा हाफ QV, यानी V की बजाय डेल्टा V की बजाय हाफ V आ गया और Q एज इट इज़, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ QV हो गई. यूजिंग द रिलेशन Q इज इक्वल टू CV, कल हमने कैपेसिटर का फार्मूला पढ़ा है. फॉर कैपेसिटर वी गेट, तो फिर एनर्जी में आप Q की जगह CV लगा दें तो एनर्जी आ जाएगी हाफ CV². इट्स आल्सो पॉसिबल टू रिगार्ड द एनर्जी एज बीइंग स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स रादर दैन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेट्स. Such a viewpoint is useful when electric field strength between the plates instead of charges on the plates causing field is to be considered. This relation can be obtained by substituting V is equal to ED and C is equal to A epsilon R epsilon naught over D. ये हम पहले दोनों रिलेशन पढ़ चुके हैं. तो एनर्जी का फार्मूला हाफ CV² है, इसमें C और V की वैल्यूज़ ये दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ A epsilon naught epsilon R डिवाइडेड बाई D इंटू ED². इसमें AD को हम सेपरेट कर लेंगे, तो A एरिया है, उसको D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो AD हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा. अगर एनर्जी को वॉल्यूम से हम डिवाइड करें तो ये एनर्जी डेंसिटी आ जाती है. तो बाज़ औक़ात क्वेश्चन ये आ जाता है कि एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करें, तो फिर आपने ये एनर्जी से AD को डिवाइड कर देना है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी, जिसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं. और फिर इसकी वैल्यू हाफ एप्सिलॉन R epsilon naught इंटू E² आ जाएगी. दिस इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन भी आप फिर लिखें. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज एनर्जी डेंसिटी. अल्लाह हाफ़िज़.